Hello everyone. Welcome back to Code with Clarity. I am Prerna, your inspiration to learn programming. I hope you all doing great. दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है और इस प्लेलिस्ट का नाम है सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट बिगिनर्स गाइड। अगर आप कोडिंग में कंप्लीटली न्यू हो या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हो, then this series is specially designed for you. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम सी प्रोग्रामिंग को स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. We won't just memorize syntax. Instead, we will understand the logic behind every concept using simple explanations, real life examples, and practical coding sessions. So, by the end of this playlist, you won't just know C programming, you will start thinking like a programmer. So, without wasting any more time, let's begin our C programming journey. Before moving ahead, let's understand who can actually benefit from this course. सबसे पहले this course is for absolute beginners. अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की, अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, that's perfectly okay. We will start from zero. Secondly, if you are a college student from BCA, MCA, BTech, BE or BSc Computer Science, then C programming is one of the most important subjects in your curriculum. This playlist will help you understand concepts in a much simpler way. अगर आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, then strong programming fundamentals will definitely give you an advantage during coding rounds and technical interviews. और अगर आप फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, रोबोटिक्स या आईओटी में करियर बनाना चाहते हो, देन लर्निंग सी इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस यू कैन मेक. इन शॉर्ट, वेदर यू आर अ बिगिनर, अ स्टूडेंट और समवन हु इज सिंपली क्यूरियस अबाउट प्रोग्रामिंग, दिस प्लेलिस्ट इज फॉर यू. So let's understand the most basic question. What exactly is programming? Programming simply means giving instructions to a computer to perform a task. Let me explain this with a simple example. Imagine आपके घर में एक रोबोट है. अगर आप सिर्फ उसे बोल दो मेक अ टी, तो शायद उसे समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या करना है. बट अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दो, बॉईल द वाटर, add tea leaves, add milk, add sugar, stir properly, then finally serve the tea. रोबोट इजिली टास्क कंप्लीट कर देगा. कंप्यूटर भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है. इट नेवर गेसेस, इट सिंपली फॉलोज इंस्ट्रक्शंस. लेकिन एक डिफरेंस है. हम इंग्लिश या हिंदी समझते हैं, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है. इसलिए हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कोड नहीं लिखते. इंस्टेड वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी. देन अ कंपाइलर कन्वर्ट्स आवर सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड फाइनली सीपीयू एग्जीक्यूट्स दोज इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड आउटपुट. और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. अब मान लीजिए आपने अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम लिख लिया. क्या कंप्यूटर उस कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है? No. Let's understand the complete process. Everything starts with a problem. For example, you want to build a calculator. सबसे पहले आप उसका लॉजिक सोचते हो. Then you write the program using C programming language. इस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं. लेकिन CPU सोर्स कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. That's where the compiler comes into the picture. एवरी टेक्नोलॉजी हैज अ स्टोरी, और सी प्रोग्रामिंग की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है. बैक इन 1969, बेल लैब्स वाज वर्किंग ऑन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. डेवलपर्स नीडेड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that was fast, efficient, and close to hardware. That's when Dennis Ritchie created the C programming language in 1972. Initially, C was developed to build system software, but because of its speed and flexibility, it quickly became one of the most popular programming languages in the world.
Over the years, different standards like ANSI C, C99, C11 and C18 were introduced to improve the language. Even today, many operating systems, embedded devices, compilers, and high performance softwares are built using C. That's why, even after more than 50 years, C is still considered one of the best programming languages to learn. और इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से सी को मदर ऑफ मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है. सो अब तक हमने सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री समझ लिया, लेकिन एक क्वेश्चन अभी बाकी है. आखिर सी प्रोग्रामिंग को इतने सालों बाद भी इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? द आंसर लाइज इन इट्स अमेजिंग फीचर्स. चलिए एक एक फीचर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. सबसे पहला फीचर है स्पीड. सी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल. इसका रीजन ये है कि सी हार्डवेयर के काफी क्लोज काम करती है, इसलिए प्रोग्राम्स बहुत इफिशिएंटली एग्जीक्यूट होते हैं. अगर आपको हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर बनाना हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम इंजिन्स या एम्बेडेड डिवाइसेस, देन सी बिकम्स अ ग्रेट चॉइस. नेक्स्ट फीचर है मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग. इसका मतलब है कि एक बड़ा प्रोग्राम हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम फंक्शंस कहते हैं. इसे कोड लिखना भी इजी हो जाता है, समझना भी इजी हो जाता है, और फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस करने हो तो वो भी इजीली मैनेज किया जा सकता है. थर्ड फीचर है पोर्टेबिलिटी. इसका सिंपल मीनिंग है, अगर आपने एक सी प्रोग्राम लिखा है तो उससे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंपाइल करके रन किया जा सकता है विथ वेरी फ्यू मॉडिफिकेशंस. मतलब आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए पूरा कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. और लास्ट फीचर है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड एक्सटेंसिबिलिटी. C already provides many built-in functions for common tasks like input-output operations, mathematical calculations, string handling and much more. और अगर built-in functions enough ना हो तो आप अपनी खुद की custom functions और libraries भी create कर सकते हो. So, because of its speed, simplicity, flexibility and efficiency, C has remained one of the most trusted programming languages for decades. बहुत सारे बिगिनर्स मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, आज के टाइम पे पाइथन इतनी पॉपुलर है तो सी क्यों सीखे? ये क्वेश्चन एक्चुअली बिल्कुल जेन्युइन है. देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना पर्पस होता है. पाइथन बिगिनर्स के लिए इजी है, लेकिन सी आपको प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट डीपली समझाती है. जब आप सी सीखते हो तब आप सिर्फ कोड नहीं सीखते, बल्कि आप मेमोरी वर्क्स, हाउ वेरिएबल्स आर स्टोर्ड, हाउ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट इंटरनली एंड हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली. ये लॉजिकल थिंकिंग आपको एक बेटर प्रोग्रामर बनाती है. दूसरा एडवांटेज ये है कि वंस यू अंडरस्टैंड सी, लर्निंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा एंड इवन पाइथन बिकम्स मच इजियर. अब देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का यूज रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ होता है. कई बिगिनर्स को लगता है कि सी सिर्फ कॉलेज सब्जेक्ट है, बट दैट्स नॉट ट्रू. आज भी सी मिलियंस ऑफ डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर यूज होती है. सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में लिखा गया है. इसके बाद आते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स. स्मार्ट टीवीज, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, एयर कंडीशनर्स, फिटनेस बैंड्स, इनमें से बहुत सारे डिवाइसेस के फर्मवेयर सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. रोबोटिक्स और आईओटी में भी सी एक्सटेंसिवली यूज होती है, क्योंकि ये हार्डवेयर के बहुत क्लोज काम करती है. नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर्स और स्विचेस के सॉफ्टवेयर में भी सी का यूज होता है. और अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री देखोगे तो बहुत सारे गेम इंजिन्स और ग्राफिक्स लाइब्रेरीज भी सी या C++ पर बेस्ड है. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ स्ट्रेंथ होती है. चलिए देखते हैं सी प्रोग्रामिंग के मेजर एडवांटेजेस.
सबसे पहला एडवांटेज है हाई परफॉर्मेंस। सी प्रोग्राम्स बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। सी प्रोग्राम्स बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। इसी वजह से जब परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है, डेवलपर्स सी को प्रेफर करते हैं। दूसरा एडवांटेज है मेमोरी इफिशियंसी। सी गिव्स प्रोग्रामर्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मेमोरी। इससे अननेसेसरी मेमोरी यूसेज कम होता है और प्रोग्राम इफिशिएंट बनते हैं। तीसरा एडवांटेज है पोर्टेबिलिटी। अगर कोड स्टैंडर्ड तरीके से लिखा गया हो तो उसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंपाइल किया जा सकता है। तो अब तक हमने सी बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ देखी है, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ के साथ उसकी लिमिटेशंस भी समझता है। सबसे पहले लिमिटेशंस है मैन्युअल मेमोरी मैनेजमेंट। अब सी में मेमोरी ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होती है, प्रोग्रामर को खुद मेमोरी अलोकेट और फ्री करनी पड़ती है। अगर ये प्रॉपरली नहीं हो, दैट वी नो व्हाट सी प्रोग्रामिंग इज एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। लेट्स आंसर अनदर कॉमन क्वेश्चन दैट मेनी बिगिनर्स आस्क। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग सीखता हूं तो फ्यूचर में मुझे इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? देखिए, सी सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। इट्स अ पावरफुल स्किल दैट ओपन्स द डोर टू मेनी एग्जिस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जरूरी होते हैं और सी उन फंडामेंटल्स को बिल्ड करने में हेल्प करती है। अगर आपको हार्डवेयर के साथ काम करना पसंद है, देन एम्बेडेड इंजीनियर या फर्मवेयर डेवलपर एक एक्सेलेंट करियर ऑप्शन हो सकता है। आज के टाइम में स्मार्ट टीवीज, कार्स, मेडिकल डिवाइसेस, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉचेस और आईओटी डिवाइसेस में फर्मवेयर लिखने के लिए सी का बहुत यूज होता है। अब प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नेवर स्किप द बेसिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली एडवांस टॉपिक जैसे डेटा स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट्स पर जंप कर देते हैं और फिर उन्हें बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इसलिए इस प्लेलिस्ट में हम एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, मतलब VS कोड इंस्टॉल करेंगे और GCC कंपाइलर कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। ये प्रोग्रामिंग जर्नी का फर्स्ट माइलस्टोन होगा। फिर हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप सीखेंगे। ये हमें बताएंगे कि प्रोग्राम डेटा को कैसे स्टोर करता है। उसके बाद ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे। ये डिसाइड करेंगे कि प्रोग्राम डिफरेंट सिचुएशन में क्या एक्शन लेगा। फिर हम लूप्स सीखेंगे। लूप्स की हेल्प से सेम टास्क को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आफ्टर दैट वी विल मूव टू फंक्शंस। फंक्शंस हेल्प अस राइट क्लीन, रीयूजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। फिर एरेज और पॉइंटर्स आएंगे। बिगिनर्स को पॉइंटर्स थोड़े चैलेंजिंग लगते हैं, बट डोंट वरी, मैं पॉइंटर्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। और फाइनली हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स और मिनी प्रोजेक्ट भी बताएंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी सीख जाओ। और सो डोंट रश, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप हर लेक्चर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो सी प्रोग्रामिंग डेफिनेटली इजी लगेगा। So let's continue. So let's quickly revise today's learning. सबसे पहले हमने समझा कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती क्या है। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर हमारे लिखे हुए कोड को कैसे अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद हमने सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस डिस्कस किए। हमने ये भी देखा कि सी लैंग्वेज रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज होती है और इसे सीखने के बाद कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। अगर आप सी अच्छे से समझ लोगे तो फ्यूचर में जावा, C++, पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। सो डोंट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द प्लेलिस्ट क्विकली, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एवरी कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। In the next lecture, we will finally move from theory to practical implementation. सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे Visual Studio Code। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे GCC कंपाइलर, जो हमारे सी प्रोग्राम
को कंपाइल करेगा और फिर हम अपना वेरी फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखेंगे। सो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि वहीं से एक्चुअल कोडिंग जर्नी स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग ब्लूप्रिंट। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर आइडिया मिल गया है कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एक आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू so much for watching. See you in the next video.